सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं. तो येस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस इज द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ आई हैव टू सम प्रधानमंत्री जी देखिए, ऐसा है कि हमारे हिंदुस्तान की फिल्मों को प्रमोट करने वाले आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं. लोग चाकू छुरी तलवार लेके घूम रहे हैं, है ना, मार्केट में. लेकिन आप लोग इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं. और बस सबसे पहले पूछना चाहूंगा, फीवर. वेल मेरा एसोसिएशन फीवर से इस वजह से है क्योंकि मैं अपने अजय भाई को जानता हूँ एंड राजीव को जानता हूँ एंड दे हैव बीन वेरी क्लोज एंड दे आर फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. और जब भी ये कभी भी इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ के अंदर, आई नो दैट दे पुट इन देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट. और मैंने ये फिल्म देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है, वेरी वेल शॉट, वेरी वेल मेड, बहुत प्यार से बहुत एफर्ट से फिल्म बनाई है. परफॉर्मेंस अच्छा है, स्क्रिप्ट अच्छी है, इट्स लिटिल डिफरेंट, पीपल विल एंजॉय वाचिंग दिस फिल्म. एंड ऐसे मौके पे आई फील मोर देन हैप्पी टू कम एंड गिव एनी काइंड ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट. और आई एम हैप्पी कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं इधर. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ वंडरफुल टू हैव यू पीपल आउट हियर एंड वी जस्ट होप that the message of this film in terms of how good it is and entertaining it just reaches to a larger audience. So thank you very much everyone. Thank you. So, मैं तो यही कहता हूँ कि आजकल तो अगर आपको प्रमोट करना है तो there is nothing better than having friends for you. And I'm we're so glad because as Bhai said that एक हमारी जो journey है that we've grown up friends and we all make films. I was very surprised that a production like this, when I was watching, have gone and shot a film in Switzerland, in Zurich, have got an international star cast. It's that it's commendable that in today's time that this team can pull something like this off. I've always been a Rajiv Khandelwal fan. I saw his first film. His first film was made by Rajkumar Gupta, sorry, and Amir. And I remember seeing the film. In fact, Vikas Bahl, a friend of mine, a very dear common friend of mine, showed us the film together. And from that time, I thought he was an extremely competent actor. He's an extremely good-looking boy. And from the sincerity of my heart, I wish that he deserves the success that he gets with Fever. It's a film that a team has put together. They've worked very hard. I've been through the journey of this film. So I know that to make this kind of film, to come out of this kind of film, and to have, and you know what surprises me? I didn't realize my repeat आपकी तरफ थी, but I'm so glad that how we as friends have been here. You as the media have come to support a film like this because एक आपका सपोर्ट है और एक पलाज अंकल का सपोर्ट है. अगर पलाज अंकल का सपोर्ट है तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, या फिर अगर आपका सपोर्ट है यू कैन गेट अ लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन. मैंने इसीलिए कहा ना, तलवार कैची लेके सब खड़े हुए हैं आजकल. So I'm really glad that for a film like this, all you boys are here, girls and boys, sorry, all you guys here to support the film because media के through ही awareness होती है. And I have, मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन during this journey, I had gone to visit Ajay to his office. मैं ऐसे ही बैठा था and he was watching the rushes. So I started watching the film. थोड़ा बहुत मैंने देखा, फिर ऐसे थोड़ा और दिखा दे, थोड़ा बहुत मैंने और देख लिया. And I found the film very interesting. It's got a unique screenplay. It's a thriller. और हर चीज़ में अगर कोई थ्रिल होती है, जैसे कि अगर एक लव स्टोरी में एक थ्रिल होती है, I think कुछ कुछ होता है was one of the most thrilling love stories. क्योंकि first Rani dies, and then you've got 7 letters, then Kajol comes back into his life. So every film which has a thrilling moment, it can be a love story, it can be a murder mystery, it can be a social film, I think keeps the intrigue of the audience. And this film has managed to do that. So I wish them all the best, and I hope that this film reaches a vaster audience thanks to the media, and appreciate all you guys being here. Thank you. मैंने भी ये सवाल राजीव से पूछा था जब ये लेके आया था. मैंने कहा फीवर क्यों है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी उस समय. जो लाइन उनकी नहीं थी, उन्होंने कोट की थी कहीं से, दैट फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज, व्हिच इज सो ट्रू. बहुत बढ़िया. इट्स द एंग्स्ट विद इन. सो बेसिकली फीवर का मतलब वहाँ से शुरू हुआ था, और सिर्फ नाम रखने के लिए नाम नहीं रखा था. उसके पीछे पूरा एक स्टोरी है. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन वी सी द फिल्म, बट इट इज़ अ वेरी एप्ट टाइटल फॉर द फिल्म. एंड
आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो बातें बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अरबाज भाई एंड सोहेल भाई दे आर हियर. यू नो, हमारी इंडस्ट्री में वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल लाइक एनी अदर इंडस्ट्री, बट these two guys, I think, as far as I am concerned, मुझे लगता है बहुत ही बड़े दिल वाले लोग हैं. I think it runs in their family. From the day I entered, I did my first pilot. मैं जब बॉम्बे में आया था तो मैंने अरबाज भाई के साथ में एक पायलट शूट किया था जो कभी आया नहीं बाहर. तब से लेकर आज तक जब मेरी पहली फिल्म आमिर आई, मुझे याद है सोहेल भाई ने फ़ोन किया मुझे, मैं कहीं पर सेलिब्रेट कर रहा था, घर बुलाया. आई मेट सलीम अंकल एंड आई एम like I was a nobody, you know, for them, but they still made an effort to at least call me, and of course I met Salim uncle and he was equally kind. I think two very very kind people have I hear and I think I can't ask for more. आपने तो रुला ही दिया था मुझे वहाँ बैठ के. So thank you so much. And yeah, so coming back to Fever, I hope you guys enjoyed the trailer. You know, a lot of effort has gone in, lot of people have been involved. बहुत सारे लोगों की मेहनत है. ये सिर्फ जो सामने आपके आगे खड़े होकर जो बातें करेंगे वही नहीं है, इसके पीछे पूरी टीम है. There's a lot to all of us because a film like this, जैसे सोहेल ने बताया कि it really needs all your support. So thank you so much. I appreciate it. And I see the very talented Javed Jafri also with us, ladies and gentlemen. उनके लिए जोरदार तालियां दे दीजिए because thank you for your support. Thank you for being here. And yeah, coming back to your question. एक लाइन में ऐसी फिल्म को आप बयां नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, क्योंकि जैसे लिखा है बी सस्पेंस्ड, और सस्पेंस जहाँ पर आता है वहाँ पर काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, कैरेक्टर्स के काफ़ी शेड्स होते हैं. तो येस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, लेकिन आई थिंक बी सस्पेंस्ड इज द राइट वर्ड फॉर फीवर इफ आई हैव टू सम इट अप. रिलैक्स, ये क्या है? एक्स थ्रिल तो समझ में आता है. Exotic? नहीं, एक्स से बहुत सारी चीजें निकल के आती एक्साइटिंग हैं. एक्साइटिंग और भी कुछ निकलता है. एक्स फैक्टर और भी कुछ निकलता है. एक्सीलेंट. एक्सीलेंट. आपको क्या लगा? मैं क्या बोलूं, मत बुलवाओ मेरे मुंह से यार. अब वो बाकी हम आपके इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं, बट these are the terms we think of, क्योंकि जब थ्रिलेक्स की बात हुई, जैसे राजीव बता रहे थे कि इट्स अ थ्रिलर विद एन एक्स फैक्टर. अब वो एक्सोटिक लोकेशंस हैं या एक्साइटमेंट है या यू नो जो हम कहना नहीं चाहते वो सब है. एक्स बड़ा कमाल का है ना, आगे लगाओ तो कुछ और होता है, पीछे लगाओ तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है. तो आई थिंक या दिस इज नहीं, राजीव और तीन तीन लड़कियां, तो मैंने सोचा शायद कुछ और होगा. गौर, ये फिल्म करने का क्या एक मेन रीजन क्या था? आपको क्या लगा कि ये फिल्म मुझे करनी ही चाहिए? That's a very good question actually, and I'm dying to say this क्योंकि जब मैंने इश्कज़ादे की, रॉकेट सिंह की, गेम की, उस वक्त मुझे लोग पूछते थे कि आप लीड रोल्स क्यों नहीं कर रही हैं, और मैं हमेशा कहती थी मेरे हर इंटरव्यू में कि आई ओनली डू थिंग्स दैट एक्साइट मी, जहाँ पर रोल्स मुझे एक परफॉर्मेंस करने का, डिलीवर करने का एक स्कोप देते हैं. एंड थैंकफुली मुझे ऐसा एक लीड रोल मिला जहाँ पर परफॉर्मेंस करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और वो क्या है वो आप फिल्म में देखेंगे. बट आई लाइक टू थैंक राजीव कि आपने मुझे ऐसा एक रोल दिया जहाँ पर एक लीड एक्ट्रेस को भी उतना ही ज़्यादा स्कोप मिल रहा है जितना कि एक लीड एक्टर को मिल रहा है टू परफॉर्म, नॉट जस्ट बी इन सॉन्ग्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. एक इसीलिए क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, जब लीड बोलते हैं तो लड़कियों को जिस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि आपके गाने कितने हैं या आप किसके ऑपोजिट हैं. मुझे हमेशा रॉकेट सिंह के हर इंटरव्यू में पूछा जाया करता था कि आप रणबीर कपूर के ऑपोजिट हैं. मैंने कहा ऑपोजिट नहीं हूँ, लेकिन फ्रेम 1 से फ्रेम एंड तक हूँ. सो दीज आर काइंड ऑफ द बैरिकेड्स दैट आई वांटेड टू ऑलवेज ब्रेक इन माय करियर, व्हिच अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लकी इनफ दैट आई हैव गॉट दोज अपॉर्चुनिटीज. And yes, my first lead role, I can very well say that it's given me a big scope to perform, and I'm thankful for that. Thank you so much. दा के बारे में बहुत सारा नहीं बता सकती क्योंकि जैसे ये एक थ्रिलर और एक सस्पेंस फिल्म है, तो उतना ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी. लेकिन ये एक लव स्टोरी है और जो ये कैरेक्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग है. काफ़ी एलिमेंट्स हैं इसमें परफॉर्म करने लायक. तो क्या किरदार है वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, बट ये कह सकती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग लड़की है, अपना दिमाग जानती है, और क्या कर रही है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा. This is your first movie and you're playing a lead role. This is not my first movie, But as a lead role, yeah. This is, so how much you're excited and how much you're nervous to play this role?
नर्वस तो अभी नर्वसनेस ख़त्म हो चुकी है क्योंकि शूटिंग हो गई और काफ़ी अच्छी हुई है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि फाइनली मुझे एक लीड अवतार में लोग देखेंगे जहाँ पर आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि सिर्फ गानों का हिस्सा या सिर्फ किसी के एक फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ, बल्कि एक परफॉर्मेंस करने का काफ़ी स्कोप मिला है, काफ़ी एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर डायरेक्टर ने बहुत ही, बिकॉज वो राइटर भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैरेक्टर लिखा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप दैट इंशाल्लाह लोग जाएं और ये मूवी देखें। चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि क्यों चैलेंजिंग था वो बता दूंगी तो फिर सस्पेंस खुल जाएगा। तो चैलेंजिंग काफ़ी था। एक आई वुड से कि आजकल थैंकफुली लड़कियों के लिए रोल्स अच्छे लिखे जा रहे हैं, ऐसे रोल्स लिखे जा रहे हैं एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे ऐसा रोल मिला है करने के लिए। तो चैलेंजिंग तो रहा, लेकिन होपफुली मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने अच्छा किया है, सो आई एम एक्साइटेड। सेम टाइम हम अगर आपके रोल में बात करें, हर रोल में बहुत प्रिपरेशन करता है जी। यस, प्रेपरेशन ऑफ कोर्स काफ़ी थी क्योंकि इस मूवी में अगर आप देखेंगे, ये पोस्टर में दिख नहीं रहा है क्लियरली, लेकिन आई हैव अ मोनरो मेरे कैरेक्टर में। एक मोनरो है जो मैंने पूरे फिल्म में पहना है, तो उसको मेंटेन करना और उसके साथ टू हैव एन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे पास और कोई पियर्सिंग है नहीं और आज तक कभी भी आई थिंक बॉलीवुड में कोई एक फीमेल कैरेक्टर नहीं है जिसने मोनरो पहना हो एज अ कैरेक्टर। तो उसको काफ़ी हमने वर्क किया है और जैसे मैंने कहा इस लड़की के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो उन सबको निभाने में काफ़ी प्रेपरेशन। How was the experience to work with a Hollywood actor? वेरी गुड। जेमा एंड कैटरीना, बोथ ऑफ देम, जैसे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं और उन्हें पता होता है कि काम के वक्त काम और मस्ती के वक्त मस्ती। तो हमने काफ़ी मस्ती भी की और दोनों ही लड़कियाँ इतनी स्वीट हैं। वी गॉट लॉन्ग लाइक हाउस एंड फायर। सारे ही टीम, राजीव, मैं और दोनों लड़कियाँ एंड जो बाकी कैरेक्टर्स थे वो भी, इट वॉज अ ग्रेट टीम ऑल टुगेदर। एंड हमने मोर देन 1 महीना स्विट्ज़रलैंड में बिताया, तो द लोकेशंस वर ब्यूटीफुल। वी हैड एक्सट्रीम, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में हैं, कि वाह, ऐसी भी एक फिल्म शूट हो रही है जहाँ पर हम सिर्फ एक गाने के लिए नहीं जा रहे बल्कि पूरी फिल्म ही हमने वहाँ शूट की है। और अगर आपके बोल्ड सीन्स की बात करें तो आपने कहा कि मैं पीछे बैठकर देख रही थी, लेकिन मॉम के साथ नहीं देख रही। तो जब आपको फिल्म के लिए बुलाया गया, अप्रोच किया गया, तो क्या रिएक्शन था आपका? कितना मुश्किल रहा और कितना चैलेंजिंग रहा? अगर बोल्ड See, coming from a regular middle class family, of course, it takes a lot of preparation आपके दिमाग में कि आप करना चाहेंगी या नहीं करना चाहेंगी और क्यों करना चाहेंगी। एज एन एक्टर आई हैव बिन ट्रेन्ड इनफ टू नो कि आपको अपने इनहिबिशंस छोड़ने पड़ते हैं टू परफॉर्म अ कैरेक्टर। थैंकफुली मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट है जहाँ पर वो समझते हैं कि एक एक्टर की ज़िंदगी क्या होती है। और मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इससे मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तो शायद मुझे कर लेना चाहिए, या हाँ, ये फिल्म में है 2 गाने हैं तो चलो बोल्ड सीन चलेगा। बट इस फिल्म की रिक्वायरमेंट वो थी, स्क्रिप्ट ऐसे लिखी गई थी कि वो क्यों कर रही है उसका भी एक रीज़न है। ये कैरेक्टर अगर एक गाने में एक ब्यूटीफुल किस है तो वो क्यों है उसका भी एक रीज़न है। इट्स नॉट जस्ट रैंडमली हैपनिंग फॉर एनी ऑफ द सीन्स इन द फिल्म। सो एज एन एक्टर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर व्हाट यू आर डूइंग। नहीं, ये पहली फिल्म है जहाँ पर गौहर खान डांस नहीं कर रही है। या एक्चुअली आई एम नॉट डांसिंग इन दिस फिल्म। नहीं, मैंने मिस नहीं किया क्योंकि इन दिस फिल्म आई गेट टू प्ले अ ब्यूटीफुल रोल। सो यस, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस फिल्म आई एम नॉट डांसिंग। अगर फिल्म में अगर बात की तो क्या सोचा, मतलब सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्ट किया आपको किरदार में कि हाँ यार ये फिल्म ये रोल मुझे करना चाहिए? आपको मेरे किरदार के बारे में बहुत कुछ जानना है ना, जब मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ तो क्या अट्रैक्ट किया हाँ यार ये वाला करना है, वो ही तो नहीं बता सकती कि क्या अट्रैक्ट किया। अगर बता दूंगी तो फिर देयर इज नो फन इन इट। बट आई कैन से दैट ये लड़की इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो जैसे मेरी असलियत भी है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग भी है, वो नाइव भी है, वो
प्यार में भी है, वो क्यों है, कैसे है, वो सब आपको फिल्म में पता चलेगा। थैंक यू।